This question we had already done in the previous class. No, not this one. We had done the earlier दूसरा वाला. Yeah. So we have to start with this. Now in this question, if you read the question, a uniform rod of mass m and length L can rotate freely on a smooth horizontal plane about a fixed axis hinged at point H. तो horizontal plane में ये rotate कर सकता है about this fixed axis at point H. A point mass m having same mass m, so इसका rod का भी mass m है और ये जो छोटा सा mass है इसका भी mass m है, point mass का. Coming with an initial speed u perpendicular to the rod, strikes the rod in elastically and its free end at its free end. So inelastically मतलब आके यहाँ पे इसके साथ चिपक जाता है. Now find out the find out the angular velocity of the rod just after the collision. तो angular velocity हम लोग को निकालना है just after the collision. तो अगर इन दोनों को हम सिस्टम मान लेते हैं, है ना, तो angular momentum कंजर्व रहेगा, right? So angular momentum, so since no external torque acts on the system, so by conservation of angular momentum, ये m into u, ये linear momentum into perpendicular distance from this fixed end. तो ये हो जाएगा initial angular momentum is m into u into l और rod stationary था plus of 0, ठीक है. अब is equal to total final angular momentum क्या है, I about h, moment of inertia about h into omega, ठीक है. तो ये ओमेगा का वैल्यू हम लोग को निकालना है. I about h अगर हम लोग निकालेंगे, moment of inertia about h is equal to ml square by 12 plus of ये center of mass के about ml square by 12 plus of m l by 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना. हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसको l by 2 से शिफ्ट कर रहे हैं. सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट h इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4. एलसीएम अगर हम लोगों ने 12 ले लिया तो 4 ml स्क्वायर बाय 12 और ml स्क्वायर बाय 3. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं मास MUL is equal to ml square by 3 into omega. M and M gets cancelled. L ये बच गया. So omega is equal to 3u by 4 ml square by 3 हो गया. अच्छा, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट h ये हो गया. थोड़ा सा गड़बड़ हम लोगों ने कर लिया. देखो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. अब इसका ये भी आके इसके साथ चिपक गया है यहाँ पे, तो इसका खुद का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट h तो ये ml स्क्वायर बाय 3 है ही, प्लस ऑफ यहाँ पे एक और आएगा, मतलब इस मास के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मास, इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया h के अबाउट होगा ml स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे इन सभी में. तो ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ऑफ ml स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो गया. दिस इज 4 ml स्क्वायर बाय 3. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. MUL इज इक्वल टू
4 ml square by 3 into ओमेगा. एंड m और m कैंसिल हो गया. ओमेगा का वैल्यू निकालना है 3UL अपॉन 4 अपॉन L स्क्वायर. अब L और L कैंसिल हुआ, so this is 3U upon 4M. So this is the value of omega, 3U upon 4M. Is it clear? क्लियर है बच्चों? Now in this question says a person of mass m stands at the edge of a circular platform, है ना? तो एक circular platform है. So circular platform के edge पे a person is standing. So person of mass m stands at the edge of a circular platform of radius r and moment of inertia I. The platform is at rest initially, but the platform rotates when the person jumps off from the platform tangentially with a velocity u with respect to platform. तो ये जो है इधर जंप कर रहा है मान लो u स्पीड से, है ना? तो ये प्लेटफॉर्म जो है रिकॉइल करेगा ओमेगा स्पीड से. ठीक है. प्लेटफॉर्म rotates when the person jumps off from the platform tangentially with a velocity u with respect to platform. तो ये जो velocity है with respect to platform है. Determine the angular velocity of the platform. ठीक है. तो let velocity of person with respect to ground is equal to v. अभी हम लोग क्या निकाल, ये जो u दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है. ठीक है. तो ठीक है. और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू ओमेगा. अब समझो, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म is equal to velocity of man with respect to ground minus velocity of platform with respect to ground. ठीक है. So अब ये velocity of man with respect to ground निकालना है, v निकालना है. तो u plus velocity of platform with respect to ground. Velocity of man with respect to platform u था. अब ये इसका जो डायरेक्शन है ओमेगा आर इज ऑपोजिट टू यू, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस ऑफ ओमेगा आर. तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है दिस इज इक्वल टू u माइनस ओमेगा आर. वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ओमेगा आर है. वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म u है. और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v है. इन सबको हम लोग इसमें यूज किए रिलेटिव वेलोसिटी. तो पहले हम लोग जो है इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लिए, u माइनस ओमेगा आर है, v इज इक्वल टू. नाउ फ्रॉम एंगुलर मोमेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैन प्लस प्लेटफॉर्म अगर सिस्टम मान लें, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम we have
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज दोनों रेस्ट पे था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है मैन का हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू रेडियस r, है ना। और ये mvr, बिकॉज ये इधर इधर जंप कर रहा है, और प्लेटफॉर्म जो रिकॉइल कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम माइनस ऑफ आई इंटू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओमेगा इधर है और v जो है मतलब जो जिस स्पीड से ये कूदा है इधर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे एक अगर mvr को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आई ओमेगा को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो दिस विल गिव यू आई ओमेगा इज इक्वल टू एम, वी के जगह हम लोग u माइनस ओमेगा आर पुट कर ले, ठीक है। u माइनस ओमेगा आर, कैपिटल आर रेडियस। So we have I omega MUR minus M omega R square. So I omega M omega R square MUR. Omega is equal to MUR I plus MR square. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now work done by torque. Okay. So work done जैसे फोर्स जो जब लीनियर मोशन हो रहा होता है तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वर्क डन उस केस में टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट टॉर्क, अगर टॉर्क कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, सो इफ ए कांस्टेंट टॉर्क tau acts on a body about a fixed axis and theta is the angular displacement of the body, then work done by the torque is given by W is equal to tau theta. So work done is equal to torque into theta. ठीक है। Now work done by variable torque, ये तो कांस्टेंट टॉर्क है। जब टॉर्क कांस्टेंट है, जब वेरिएबल टॉर्क होगा तब उस केस में जो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क, अगर डी थीटा, जब डी थीटा डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होता है, और उस समय टॉर्क को उस डी थीटा जब तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब तक टॉर्क को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डी डब्ल्यू जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, टॉर डी थीटा। अब नेट वर्क, अब हम लोग को टोटल वर्क निकालना है तो यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू टॉर डी थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। ना जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए, अ बॉडी whose moment of inertia is 3 kg meter square is at rest, it is rotated for 20 seconds with moment of force 6 न्यूटन मीटर। मतलब टॉर्क दे रखा है, टाइम कितने टाइम तक रोटेट कर रहे हैं वो दे रखा है ना। वर्क डन विल बी, और रेस्ट से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, ठीक है। वर्क डन हम लोग को निकालना है,
तो वर्क डन, अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, I इज इक्वल टू 3 kg मीटर स्क्वायर, राइट। और उसके अलावा टॉर्क दे रखा है 6 न्यूटन मीटर, और कितने टाइम तक हम लोग रोटेट कर रहे हैं ये दे रखा है 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, तो इससे हम लोग को 6 इज इक्वल टू 3 अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा अगर हम लोग को निकल गया, अब हम लोग को पता है ओमेगा इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली हम लोग को थीटा निकालना है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। सो दिस इज ओमेगा नॉट तो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, 0 प्लस हाफ इंटू 2 into t square, t is 20, so 20 into 20, so 2 into gets cancelled, so theta is equal to 400, right? So 400 radians angular displacement हो गया, और torque is constant. Here we are getting a scenario where the torque is constant and the angle theta we have calculated. So work done is equal to torque into angular displacement, 6 into 400, this is 2400 joules. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, बेटा. Sir, torque is analogous to force in linear motion. Like in rotational motion, torque is analogous to that. Yeah. In rotational motion, torque is same as force in linear motion. है ना? So as we consider force responsible for any kind of linear motion, similarly torque is responsible for any kind of angular motion. And omega is similar to mass. Yeah, omega is similar to velocity. I is similar to mass. Moment of inertia I is similar to mass. Omega, angular velocity, is similar to linear velocity v. Okay. Okay. Now rotational kinetic energy. So expression of rotational, जो pure rotation होता है उस समय जो rotational kinetic energy है half I omega square होगा. So expression of rotational kinetic energy, I is the moment of inertia of a rigid body about an axis. Omega is the angular velocity of a body about the axis. So rotational kinetic energy of a body about a fixed rotational axis is defined as K rotational is half I omega square. So this is for pure rotation, when the body is undergoing a pure rotational motion. If it is rotation plus translation, तब कुछ और होगा, तब एक half mv square का भी component आएगा, which we will see later. Now relation between rotational kinetic energy and angular momentum. So rotational kinetic energy is half I omega square. Angular momentum L is equal to I into omega. Now if you find a relation between them, we know that L square is I square omega square. What you need to do is, so we have kinetic energy of rotational motion half I omega square. You multiply I and divide it by I. So this will be I omega whole square by 2I. I omega is L. L square by 2I is K rotational. So this is what is given here as well. So the relation between rotational kinetic energy and angular momentum is K rotational is equal to L square by 2I. Now, in this question, a uniform thin rod of length L is suspended. So length L है,
it is suspended from one of its end and is rotated at f rotations per second. So number of rotations per second, omega अगर हम लोग निकालेंगे, omega is f rotation, एक rotation में 2 pi angle जाता है, तो f into 2 pi radians per second. So 2 pi f कर देने से हम लोग को रेडियन पर सेकेंड में इसका एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगा. दिस इज द फ्रीक्वेंसी f. Now the rotational kinetic energy of the rod will be, right? So we have to calculate rotational kinetic energy. So first we calculate moment of inertia about the axis of rotation. So moment of inertia I about the axis of rotation will be equal to ml square by 12 plus ml by 2 का whole square, है ना. इस पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 उसको हम लोग l by 2 डिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं, तो ml by 2 का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा. सो दिस इज ml स्क्वायर बाय 3. Okay. So moment of inertia is ml square by 3. Now rotational kinetic energy is half I omega square. Half into I is ml square by 3 into omega square f into 2 pi whole square. So this is 1 by 2 ml square by 3 4 pi square f square. So this is 2 by 3 ml square 2 by 3 ml square into pi square f square. So this is option 1. Excuse me, sir. Yes. The time period equals to 1 upon f. हाँ, 1 upon f वो जब हम लोग SHM वगैरह करेंगे तब होगा. यहाँ पे टाइम पीरियड अगर एक रोटेशन का निकालना होगा तो 1 upon f करके निकाल सकते हैं. ये सर 1 upon f किया तभी हमारा f into 2 pi आके हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई. हाँ जी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर अब क्लासेस फिजिक्स की रोज ही पहले होगी. हाँ, फिजिक्स की क्लास अब रोज ही पहले होगी, मतलब एटलीस्ट अभी 1-2 महीने. ठीक है. Now point masses m1 and m2 are placed at the ends of a right rigid rod of length L. So we have two masses. One is m1, other is m2. These are placed at the ends of the rigid rod of length L of negligible mass. एक mass यहाँ पे रख दिया m1, दूसरा m2 यहाँ पे रख दिया. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to its length. Locate a point on the rod through which the axis of rotation should pass in order that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega is minimum. तो हम लोग को वो पॉइंट निकालना है ना. यहाँ से मान लो x डिस्टेंस पे हमारा एक्सिस जिसके अबाउट हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं, और उस केस में वर्क रिक्वायर्ड इज मिनिमम विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज मिनिमम. तो वर्क डन मिनिमम हो ऐसा हम लोग को करना है. तो मान लो यहाँ पर से डायग्राम में दिख ही रहा है कि x डिस्टेंस हमने m1 से लिया है. लेट द एक्सिस ऑफ रोटेशन बी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम m1. Let axis of rotation is at a distance x from m1 perpendicular to rod. Okay. Now
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अगर हम लोग को निकालना होगा, दिस इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m2 इंटू एल माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना। रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं होगा क्योंकि मासलेस है रॉड, नेग्लिजिबल मास का है। वर्क डन, अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो वर्क डन is equal to half I omega square half into m1 x square into L minus x whole square into omega square. For omega to be minimum, we have d omega by dx is equal to 0. So dw by dx, sorry, for work done to be minimum. So इसको differentiate कर देते हैं. So this is half into 2m1x plus 2 into L minus x into minus 1. Omega तो constant, omega square is equal to 0. अब this will give you, ये सबको उस तरफ लेके चले जाएंगे, 2m1x माइनस ऑफ, है ना, 2 को उधर लेके चले जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, 0 हो गया। 2m1x माइनस ऑफ 2m2 इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, सो वी हैव m1x इज इक्वल टू m2 इंटू एल माइनस एक्स, m1 प्लस m2x is equal to m2l और x is equal to m2l by m1 plus m2. आगे समझ? Yes. Now energy conservation, work energy theorem in rotation. So work done by torque on a body is equal to rotational kinetic energy of the body. So work done by the torque is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So change in kinetic energy is work done by the torque. The net rotational work done by the forces is equal to change in rotational kinetic energy of the body. Okay. So ये work energy थ्योरम पे अभी हम लोग क्वेश्चन कर भी रहे थे यहाँ पे, है ना। तो change in kinetic energy, work done due to torque is change in kinetic energy. Conservation of mechanical energy क्या कहता है कि अगर external force की वजह से torque 0 है, right? So in the absence of dissipative work done by non-conservative forces, तो कोई non-conservative force नहीं है ना, and there is no work done against non-conservative forces, the total mechanical energy of the system remains conserved. मतलब बस conservative force लग रहा है, non-conservative force या तो नहीं लग रहा है और लग रहा है तो उसके वजह से work done 0 है। इस केस में total kinetic energy is conserved. So final sum of the final kinetic plus potential energy is equal to sum of initial kinetic plus potential energy.
Now this question is based on conservation of energy. So a wheel of moment of inertia I, मान लो ये wheel है, इसका moment of inertia I है, and radius r, इसका radius r है, is free to rotate about its center as shown in the figure. A string is wrapped over its rim and a block of mass m is attached to the free end. Free end of the string and the system is released from rest. ठीक है, initial velocity 0 हो गया. Now find the speed of the block as it descends through a height h. तो height h जब fall कर गया तब उस समय हम लोग को speed of the block निकालना है कि इसका speed कितना हो. ठीक है. So तो loss in potential energy is basically the gain in kinetic energy. Okay, so decrease in gravitational potential energy of block is equal to increase in translational kinetic energy of block and rotational kinetic energy of wheel. So देखो जो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज इक्वल टू mgh is equal to increase in translational kinetic energy of block half mv square and rotational kinetic energy of wheel plus half I omega square. तो यहाँ पे देखो देर string is wrapped free end and system is released from rest. और कोई भी यहाँ पे ये मेंशन नहीं है बट स्ट्रिंग जो है यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर हो गया. इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं mgh हाफ mv स्क्वायर हाफ I v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है. सो वी हैव, अब 2 इधर लेके चले जाएंगे. So this is 2 mgh is equal to mv square I by 2r square, sorry I by r square into v square. So v square अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, v square is equal to 2 mgh m plus I upon r square. तो v is equal to root under 2 mgh m plus I by r square.
आगे समझ? Yes, sir. Now next question. This is also based on conservation of energy only. So block of mass m is equal to 4 kg. So this mass is 4 kg, is attached to a spring with a spring constant k equal to 32 Newton per meter by a rope that hangs over a pulley of mass m is equal to 8 kg. Pulley ka mass 8 kg hai. If the system starts from rest with the spring unextended, find the speed of the block after it falls 1 meter. Treat the pulley as a disk where I is equal to half mr square. ठीक है. So यहाँ पे देखिए, तो ये जो ब्लॉक यहाँ पे 1 मीटर जब फॉल करेगा उस समय इसका स्पीड निकालना है. ठीक है. तो v इज इक्वल टू बेसिकली ओमेगा आर होगा. ठीक है, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है. v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हो गया. नाउ when the pulley when the block falls down by a distance x, let's say, so decrease in potential energy is minus mgx, और यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे इंक्रीज क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे mgx डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ इंक्रीज जो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है. और जो नेट काइनेटिक एनर्जी है वो इसका काइनेटिक एनर्जी मान लो ये ओमेगा स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और v स्पीड से ये मूव कर रहा है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियली सब चीज रेस्ट पे था. ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, change in potential energy plus change in kinetic energy is equal to 0. इनिशियली तो कुछ भी नहीं था चेंज, राइट. सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ है, राइट, और काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ है, दोनों इंक्रीज हुआ, वो दोनों अगर हम लोग निकाल लें, सो वील गेट, सो वी कैन से इसको उससे अच्छा डिक्रीज इन potential energy is equal to increase in kinetic energy. So potential energy कितने से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे तो mgx से डिक्रीज कर रहा है और वहाँ इंक्रीज की हाफ के एक्स स्क्वायर से कर रहा है. तो mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द डिक्रीज, इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I omega square. So this is equal to mgx minus half kx square is equal to half mv square. I का वैल्यू mr square by 2 और ओमेगा का वैल्यू v square by r square. ये कैंसिल हो गया. mv square by 4 plus mv square by 2, 3 mv square by 4. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. सो मास जो है 4 kg है. सॉरी, ये दोनों मास अलग अलग है, ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है. ठीक है.
So small mgx 4 into 10 into displacement 1 है minus half into 32 into 1 into 1 is equal to half into 4 into v square plus half into 8 by 2, so 4 into v square. So this is 40 minus 16 is equal to 4 by 2, 2 v square, 4v square. 40 minus 16 is 24 by 4. And v square is equal to 6. So this will give us v is equal to root 6. .45 meter per second. सर Yes. सर उस पार्ट में 8 लेंगे सर 8 किलोग्राम है ना सर पुली का मास हाँ तो इसलिए m by 2 8 by 2 करके 4 लिखा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है सर तो यहाँ पे हमने वही किया 8 by 2 किया और उसके बाद 4 लिखा। लिख लिया आप लोगों ने? यस yes sir. अब देखो ये लास्ट पोर्शन है चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। रोटेशन एक्चुअली में समझने में यहीं पे आता है डिफिकल्टी, तो समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। क्वेश्चंस तो खैर कितने भी कर लो वो कम नहीं है मतलब सॉरी ज्यादा नहीं है। तो रोलिंग मोशन क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट पे ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों साथ में हो रहा होता है उसको रोलिंग मोशन कहते हैं। सो when a body performs translatory motion as well as rotatory motion combined, ठीक है, then it is said to undergo rolling motion. The velocity of the center of mass represents linear motion while angular velocity about centroidal axis represents rotatory motion. So total energy in rolling, जब total rolling हो रहा होता है total energy क्या कहते हैं? Translational kinetic energy plus rotational kinetic energy, दोनों को हम लोग consider करेंगे। तो half mv square, half mvcm square plus half I omega square। तो जब हम लोग को ये काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा, ट्रांसलेशनल मतलब हाफ इंटू मास m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का क्या होगा? ये जो पोर्शन है ना जो कांटेक्ट में है ग्राउंड के, वहां पे जब वेलोसिटी 0 हो जाता है कांटेक्ट पॉइंट के पास, उस समय वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? वो जो रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट उसको हम लोग कहते हैं कि ये रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लिपिंग, जिसको प्योर रोलिंग का केस कहते हैं, है ना। सो इफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द rolling body with the surface is 0, then it is known as pure rolling. Pure rolling का केस कब होगा? जब relative velocity यहाँ surface of contact पे, ठीक है, तो relative velocity जब 0 होता है point of contact पे, तब उस समय rolling body को हम लोग pure rolling का केस कहते हैं। So
if a body is is performing rolling, then velocity of any point of the body with respect to the surface is given by velocity v is equal to velocity of center of mass plus omega r. ठीक है, तो v is equal to vcm plus omega r. तो अगर किसी पॉइंट का वेलोसिटी अगर हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो बॉडी अगर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है तो उस समय वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ बॉडी, मान लो कोई पॉइंट ये है, तो उस पॉइंट का बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल मतलब यहाँ पे अगर सर्कुलर ये एक सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तो ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा इसका रोटेशनल मोशन इधर होगा ओमेगा आर. तो वी सी एम और ओमेगा आर का वेक्टर सम अगर हम लोग कर देते हैं, है ना, तो इनका जो वेक्टर सम होता है वो हमें इस पॉइंट का टोटल वेलोसिटी बताता है. ठीक है, सो इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोलिंग, then velocity at any point of the body with respect to surface is given by v is equal to vcm plus of omega r. So this is v, so vcm plus omega r. This is very important to understand. तो अगर प्योर रोलिंग का केस होगा तो उस समय जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा VCM, ठीक है, तो VCM इज इक्वल टू R ओमेगा होता है. अगर प्योर रोलिंग होता है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM इज इक्वल टू R ओमेगा के बराबर. तो ये देखिए, ये जो नेट वेलोसिटी VCM प्लस ओमेगा क्रॉस R हम लोग कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को निकालना है, राइट, तो इस पॉइंट से कैलकुलेट करो, है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे इसका तो VCM होगा ही प्लस ऑफ ओमेगा इंटू R. ये डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, R है, तो इस पॉइंट पे ओमेगा आर होगा उसकी वजह से. तो जब वेलोसिटी एट ए लिखेंगे, सो वेलोसिटी एट ए विल बी VCM. तो पहला हम लोग ए पे निकाल रहे हैं, VCM प्लस ओमेगा आर, है ना, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास जैसे ट्रांसलेशनल मोशन होगा, और उसके अलावा ओमेगा आर भी है यहाँ पे, तो VCM प्लस ओमेगा आर दोनों को ऐड कर दो तो ये 2VCM के बराबर हो जाएगा, है ना. तो जो यहाँ पे VCM है, यहाँ पे 2VCM हो जाएगा टोटल वेलोसिटी. उसके अलावा बी पॉइंट पे अगर हम लोग चेक करते हैं, बी पॉइंट पे VCM प्लस ओमेगा इंटू R/2 करेंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से R/2 है, तो ओमेगा R/2 VCM प्लस ओमेगा R/2, राइट. तो ओमेगा R/2 मतलब VCM/2 हो गया, तो 3VCM/2 हो गया VB का. सी पॉइंट का वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो VCM प्लस ओमेगा इंटू जीरो हो गया, तो VCM के बराबर ये इसका वेलोसिटी हो गया. डी पॉइंट पे, ये जो डी पॉइंट है, दिस इज एट ए डिस्टेंस R/4. अब R/4, अब ये देखो, ये पॉइंट जो है इधर मूव कर रहा है, तो ये उसके वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो यहाँ लीनियर जो वेलोसिटी होगा, दैट इज ओमेगा R/4 इन दिस डायरेक्शन, और VCM इधर है, तो VCM माइनस ओमेगा R/4 हम लोग करेंगे डी पॉइंट के लिए, राइट. तो दिस इज VCM माइनस VCM/4, दैट इज 3/4 VCM. और इस पॉइंट पे जब आते हैं, यहाँ पे देखो VCM इधर है, ओमेगा R इधर है, VCM माइनस ओमेगा R, VCM ओमेगा R के बराबर ही होता है, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है, पीछे हम लोगों ने देखा था प्योर रोलिंग के केस में VCM इज इक्वल टू ओमेगा R होता है. तो यहाँ पे देखो ई पॉइंट पे जो हम लोग को पता है, प्योर रोटेशन का केस क्या होगा, प्योर रोलिंग का केस में, प्योर रोलिंग कह लो, प्योर रोटेशन,
प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे रहता है, मतलब VE इज इक्वल टू 0, तो VCM माइनस ओमेगा आर 0 हो गया, तो VCM किसके बराबर हो गया, ओमेगा आर के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये उल्टा प्रूव कर रहे हैं कि VCM को ओमेगा आर के बराबर लेके और उसके बाद प्रूव कर रहे हैं कि E पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वेलोसिटी 0 होता है प्योर रोलिंग के केस में। सो फॉर प्योर रोलिंग point of contact is at rest. In pure rolling, point of contact is at rest. Clear है बच्चों? आ रहा समझ में? अब एक ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिए। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल को जब ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो जाता है, प्योर रोलिंग का केस। ठीक है, तो देखो हर पॉइंट का तुम देखोगे VCM, सेंटर ऑफ, जो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, जितना भी रिजिड बॉडी में जो भी पार्टिकल है, वो सब उसी स्पीड से राइट साइड में मूव कर रहा है VCM से। और प्योर रोटेशनल है तो हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, और वहां पे जो लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो ओमेगा आर करके निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे ये पॉइंट पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का वेलोसिटी ऐड कर देंगे, तो VCM प्लस ओमेगा आर 2VCM हो जाएगा। ई पॉइंट पे आएंगे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ये दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये √2VCM हो जाएगा क्योंकि ये लोग 90 डिग्री पे हैं। इस पॉइंट पे आते हैं, है ना, VCM इधर हो गया, ओमेगा आर इधर हो गया, VCM माइनस ओमेगा आर 0 हो गया। F पॉइंट पे आते हैं, VCM इधर हो गया, ओमेगा आर इधर हो गया, उनका रिजल्टेंट इधर √2VCM हो जाता है। So pure translatory motion plus pure rotatory motion is rolling motion. So for pure rolling motion of the above mentioned body, we have A point पे velocity 2VCM हो गया, ये जो E point पे velocity √2VCM हो गया, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। B point पे velocity 0 हो गया, और F point पे भी velocity फिर से √2VCM हो गया। तो जैसे जैसे आप ऊपर से टॉप से नीचे की तरफ आओगे, वेलोसिटी कम होता जाएगा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM, टॉप का 2VCM, और रेस्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे 0 हो गया। ठीक है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो इस तरह से देखो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी। अब किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, अभी तक तो हम लोग स्पेसिफिक केसेस देख रहे थे, अब हम अगर वेक्टरली देखें तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ अ रोलिंग स्फीयर। मान लो किसी पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हमें पता है V यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो R ओमेगा है। अब ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 है तो ये एंगल थीटा हो गया, राइट। तो अब हम लोग को दो वेक्टर्स का सम निकालना है जिनके बीच में एंगल थीटा है। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग, अच्छा, V इज इक्वल टू R ओमेगा है, मतलब ये इधर भी V हो गया, इधर भी V हो गया, है ना, क्योंकि V तो R ओमेगा के बराबर होता है प्योर रोलिंग के केस में, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो टू वेक्टर्स, resultant of two vectors where the angle between the vectors is theta will be equal to v square plus v square plus 2v square cos theta। भाई हम लोग को पता है a square plus b square plus 2ab cos theta होता है जब हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे होते हैं किसी भी दो वेक्टर्स का।
तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos थीटा. So v square plus v square becomes 2v square. You take common, 2v square as common, you will get 1 plus cos theta. In trigonometry, there is one formula, 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. Yes, sir. Cos 2 theta equals to 1 minus. So 1 plus cos theta will be replaced by 2 cos square theta by 2. So this will become 4v square cos square theta by 2. 4v square में से बाहर निकालेंगे तो 2v हो जाएगा, cos square theta by 2 cos theta by 2 हो जाएगा. So 2v cos theta by 2 हो जाता है. So net velocity is 2v cos theta by 2. ठीक है. So if we are measuring the angle theta from the vertical upward direction, यही अगर कभी कभी क्या है कि जो थीटा हम लोग मेजर जो करते हैं दैट इज फ्रॉम द बॉटम, मतलब इस जगह से थीटा को मेजर करेंगे. अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी है वी सी एम इधर हो गया और जो आर ओमेगा है वो इस डायरेक्शन में हो गया. जस्ट अ सेकंड. ठीक है. सो ये हो गया हमारा v और ये हो गया r ओमेगा. तो ये यहाँ पे देखो बताया भी हुआ है v इज इक्वल टू r ओमेगा, और ये तो ये भी r ओमेगा v के बराबर है. और इनके बीच में जो एंगल होगा, सी दिस इज थीटा, दिस इज हाउ मच 90 माइनस थीटा, राइट. सो इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, राइट, एंड दिस इज 90, so this total will become 180 minus theta from here to here, right? So we have two vectors whose magnitude is same and the angle between them is 180 minus theta. Same formula we will apply. V square plus v square 2v into v cos 180 minus theta. So here the value will be 2v sin theta by 2. Previous case it was 2v cos theta by 2. तो कोई भी अगर हम लोग एंगल थीटा यहाँ से मेजर करते हैं किसी पॉइंट का, तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है दिस इज 2v cos थीटा बाई 2, है ना, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. और अगर हम लोग एंगल जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से मेजर कर रहे होते हैं, है ना, उस केस में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा दैट विल बी 2v sin थीटा बाई 2. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू यूज सम पर्टिकुलर वैल्यू. So when a body performs translatory motion as well as rotational motion, then this type of motion is known as rolling motion. This we have already seen. So motion of football rolling on a surface is an example. In rolling motion, the velocity of center of mass represents linear motion, while angular velocity represents rotational motion. Now, the kinetic energy of rolling body is equal to the sum of kinetic energy of translational and rotational motion. So अगर हमें net kinetic energy निकालना होगा, that will be equal to half I omega square plus half m into velocity of center of mass का whole square. Now, if you see this example, so in this, a disc of mass 5 kg. So a disc of mass 5 kg and radius 50 centimeter rolls on the ground at a rate of 10 meter per second. Determine the kinetic energy of the disc. तो देखो रोलिंग हो रहा है, mass of disc is 5 kg, right? Moment of inertia I is equal to mr square by 2. Radius 50 centimeter है, 0.5 meter. So 5 into 0.5 का whole square by 2. So this is 5 into 0.625. Okay. So total kinetic energy is half mv square
plus half I omega square, half into 5 into 10 square, half into I 0.625, and omega is equal to V by R. So 10 by 0.5, 20 radians per second. So 100 into 5, 500 by 2, 250 plus 400, 125, 375 joules. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So we'll stop here. थोड़ा सा और रह गया है, वो हम लोग next class में करके we'll finish this chapter. ठीक है? I have started sending you DPPs of the previous chapters which we have done. So I'll be sending you every day 1 or 2 DPPs. So you just need to do it every day. So try and practice every day so that you are prepared fully before your exams. Okay? And these